In the previous class, we studied about thrust and pressure. So, continuing from there, the further topics are not directly related with thrust and pressure, but yes, pressure is somewhere involved over here. But the pressure which we are going to talk about is mainly the fluid pressure. Okay, and for understanding fluid pressure, you should know what is fluid. Okay, let's understand the meaning of the word fluid. The molecules of gases do not occupy fixed positions. Instead, these molecules are in a state of random motion. Liquids and gases therefore do not have a particular shape. They take the shape of the container in which they are filled. We have studied these properties of liquids and gases in chemistry chapter 1. Matter in our surrounding, right? On application of force, these molecules flow from one region to another. Which molecules are they talking about? They are talking about the molecules of liquids and gases. On application of force, these molecules, they flow from one region to another. For example, water flows in a river. Blood circulates in our body. We inhale and exhale air. Wind blows. We sip cold drinks. Exhaust gases are released from the vehicles. Liquids and gases are fluids because they can flow. So, fluid simply means substances which can flow. Fluid simply means substances which can flow. To conclude, fluid is a substance which has ability to flow. So fluids, what exactly are fluids? Fluids constitute of fluids means liquids and gases. When we talk about fluids, we mean liquids and gases. To conclude, fluid is a substance which has ability to flow. In contrast, the constituent particles of solid are fixed. The relative arrangement of the particles therefore does not change easily, even on application of force. Therefore, solids do not flow. If you apply force to solid, they don't flow. Yeah, they get displaced from their position, but they don't flow like fluids. Pressure exerted by fluids. So I was talking about this point earlier, that we started our study of this particular chapter in the last video from the topic thrust and pressure, and we understood pressure is thrust per unit area. Now when we have studied, or we have started understanding what is fluid, with this uh, topic fluid, one very important topic follows, and that is pressure exerted by fluids, or you can call it as fluid pressure. Fluid pressure, let's understand. Fluids exert pressure. The pressure is exerted normal or perpendicular to the surface. Pressure is exerted normal or perpendicular to the surface. In figure, P3 is greater than P2 is greater than P1. Where is P3? P3 is at the bottom. Where is P2? P2 is at the side of the container but at a lower depth. Where is P1? P1 is also at the side of the container but it is at a little lesser depth. The distance of that of the free surface of the fluid and the point A where pressure P1 is exerted by the fluid is less as compared to the distance between the free surface and P2. So P2 is greater than P1. P3 will be the highest. Why?
because as the depth increases, see, that's what they have written, as the depth from the free surface of the liquid increases, the pressure exerted by the liquid increases. And I'm sure that whoever from you all knows swimming, they all might have or must have at some point of the time, some or the other point of the time, they must have experienced fluid pressure. So remember the time when you used to swim underwater. If you have tried it, you must remember that time, right? Underwater, whenever you go underwater, the greater depth you reach, the greater pressure you feel on your body from all the directions. You feel pressure from all the directions on your body. That is the pressure exerted by the water around you and above you, because you are underwater. So above you also there is water, around you also there is water. So all the water which is above you and around you will exert pressure on your body, perpendicular pressure, right? So that pressure increases as you go deeper and deeper. And that is the reason why deep sea divers, deep sea divers, deep sea divers are those people who go uh, uh, inside the sea wearing a special underwater, um, you can say, diving costume. So they have that body costume, underwater diving costume. They wear it, the black color thing, skin tight, skin hugging. They wear it and they take a cylinder with them also, and then they dive underwater in sea, because they go at a very great depth at which the pressure is huge. So they feel a tremendous pressure on their body, and to save their body from that external pressure of the sea water, to save their body from the external pressure of the sea water, they wear this suit, which is diving suit. And this diving suit actually helps them, okay, saves them from the pressure. So one thing is very very clear, if you have tried underwater swimming or not, one thing is very clear, uh, even if you don't have experience, please remember this, that fluid pressure increases with the depth. Fluid pressure increases with the depth. Now one more thing I want to add over here. I just told you that fluid means liquids as well as gases, right? Liquids as well as gases. That means air is a fluid, and you must know that there is an envelope of air around Earth. There is an envelope of air around Earth. You know what this envelope of air known as? This envelope of air around Earth is known as atmosphere. Let me show you with the help of a diagram. So as I told you, there is an envelope of air around Earth, which is known as atmosphere. Okay. Now coming back to our previous point, which I made very clearly, that fluid pressure increases with depth. Okay, and we took an example of underwater swimming and deep sea diving, right? So this is very clear that fluid pressure increases with depth. So air is also a fluid. I have established that. Now this is, let me draw it with a red line. This is supposed to be the total width or the thickness or the height or the depth of atmosphere. And this is all fluid. Okay, this is all fluid. As you can see, this is very dark blue portion. Also, you can say light bright blue portion, sky blue portion. This troposphere or sky blue portion, in this portion of the atmosphere, the density of air is very high. And as you go above, the blue portion becomes lighter and lighter. That means the density of air decreases as you go up.
But okay, we are not talking about density because that is altogether a new topic. What I want to say is that this exosphere, the top portion of exosphere can be considered as a free surface. जैसे पानी का कोई कंटेनर है, ठीक है, और ये कंटेनर में, let me just a moment, there is a container of water, ठीक है, और उसमें मैंने पानी भरा है, एंड इफ यू सी, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये फ्री सरफेस के पास है और ये पॉइंट अंदर है पानी के, तो जो अंदर है वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, सही बात है। तो इफ यू कंसिडर एटमॉस्फेयर as you can say fluid made up of air which is a fluid, then this space will be the free surface, और फ्री सरफेस से नीचे जाओगे उतना फ्लूइड प्रेशर तो बढ़ता है, फ्लूइड प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। इसका मतलब क्या है, ये जो एटमॉस्फेयर है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर रहता है उसके ऊपर, इसको क्या बोलते हैं पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट यू शुड नो, एटमॉस्फेरिक pressure. So the pressure exerted by atmosphere increases as you move away from the free surfaces or as you go deeper into the atmosphere towards the surface of earth. मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस। ये जो अर्थ सरफेस है इसको सी लेवल भी बोलते हैं। As you move higher above the earth's surface, the atmospheric pressure goes on decreasing. मतलब सपोज ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे यू कैन से माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट के टॉप पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, क्यों, क्योंकि इट इज हायर अबाउ द अर्थ सरफेस और सी लेवल। तो सिंपल है ये, इसमें भी तुम फ्लूइड प्रेशर की वो सेम प्रॉपर्टी देख सकते हो जो तुम्हें जो कंटेनर में एक फ्लूइड है उसमें जो प्रॉपर्टी है, स्विमिंग पूल में जो पानी है उसमें जो प्रॉपर्टी है, या डीप सी डाइविंग में जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, वो सेम प्रॉपर्टी एयर भी एग्जिबिट करती है, बिकॉज एयर इज ऑल्सो अ फ्लूइड। या एटमॉस्फेयर भी एग्जिबिट करता है बिकॉज एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ एयर विच इज अ फ्लूइड। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर exerted by the fluid of atmosphere, that is air, is maximum at the earth's surface, that is sea level, and minimum as you go higher and higher and higher above। ठीक है, तो जहाँ पे स्पेसशिप्स होती है, स्पेस स्टेशंस होते हैं स्पेस में, जनरली यू कैन नॉट गो विदाउट स्पेस सूट। स्पेस सूट कंपल्सरी है, बिकॉज इफ यू गो विदाउट स्पेस सूट then outside atmospheric pressure will be negligible, बहुत कम होगा, and if outside atmospheric pressure is negligible and your body, your blood pressure is more than outside pressure, then you will bleed from all the parts of your body, mostly from the nose and the ears and the eyes, and you will die। दैट्स वाई स्पेस सूट में क्या होता है, वो प्रेशर मेंटेन करता है। स्पेस सूट एक्चुअली सेव्स यू इन द आउटर स्पेस जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता। हमारा बॉडी बना ही उस तरीके से कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हैंडल कर सके। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर बाहर से जो एयर का है उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी का अंदर से एक प्रेशर है जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो कुछ लोग जब माउंटेनियरिंग करते हैं, जब हाई माउंटेन्स पे जाते हैं, तो दे ब्लीड फ्रॉम देयर नोज बिकॉज वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है, ऑल्दो इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन योर बुक, बट स्टिल मुझे लगता है कि फ्लूइड प्रेशर की जब बात होती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात होनी चाहिए ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। Some more characteristics of fluid pressure. Pressure at point A, which is P1, which is also the pressure at point B. तो point A और point B अगर तुम देखोगे, they are at the same depth. That is, the pressure exerted by the fluid is same as at the same depth. Pressure at the same depth is always the same. Pressure increases with the depth. दो चीज समझ में आ गई।
Third is pressure acts perpendicular to the surface of cylinder placed in a still liquid. तो कोई एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके हर एक सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारे लॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर। लॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर सारे लॉज नहीं है, बट फिर भी मोस्टली जो इंपॉर्टेंट लॉज है वो लोग ने लिस्ट किए हैं। तुम्हारे जो सिलेबस है उसके हिसाब से जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो मोर देन इनफ है। इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा। ओके, लेट्स गो अहेड। बोयंसी, ये नेक्स्ट टॉपिक है, बोयंसी। ठीक है, ये जो बोयंसी वर्ड है, it is made up of the main root word of this buoyancy is boy, buoy, boy. It has nothing to do with the word boy means लड़का, नहीं, boy से इसका कोई लेना देना नहीं। तो ये boy क्या है, boy या फिर boy ही बोलते हैं इसको। Let me show you what is a boy. Okay, this is what you see on your screen is known as a boy. तो तुमने ऐसे फ्लोटर्स या बॉय देखे होंगे, स्विमिंग पूल में देखे होंगे, या फिर सी में देखे होंगे। तुम्हें पता होगा, इफ़ यू गो टू सम बीच, एक एक लाइन होती है जिससे आगे स्विमिंग नहीं करना चाहिए, मतलब वो है तुम्हारा सेफ्टी लाइन जैसी होती है। सी के अंदर ऐसी फ्लोटिंग एक रस्सी होती है और जिसमें ऐसे बॉल्स लटकाए हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और ये फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, या फिर तुमने ऐसा कुछ देखा होगा जिसमें उसके ऊपर एक लाइट है, लैंटर्न, इसको बॉय लैंटर्न भी बोलते हैं। इसको मिडल ऑफ द सी ऐसे रखते हैं टू गिव इंडिकेशन कि आगे जो बड़ी बड़ी शिप्स है वो ना आए, बिकॉज डेप्थ कम है आगे, तो शिप्स डैमेज हो सकती है। या फिर कोई भी रीजन के लिए ऐसे बॉय को सी के मिडल में रखा जाता है। सो बॉय बॉय इज नथिंग बट अ फ्लोटर। बॉय क्या करता है, फ्लोट करता है। तो ये जो बोयंसी वर्ड है ना, it has been derived or it has been made from this word boy. Root word is boy. So boy is something which floats. Simple. Boy is something which floats. Let me write it over here. Something, तुम भी notes ले लो, something which floats. एक बॉडी जो फ्लोट करती है उसको बॉय बोलते हैं। ठीक है, उससे वर्ड आया बोयंसी। तो बोयंसी का क्या मतलब है, बोयंसी का मतलब है द फिनोमेना ऑफ फ्लोटिंग, द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड by some bodies due to which they float, or due to which they have tendency to float. So buoyancy is nothing but tendency to float. इसको हम बोल सकते हैं tendency to float. buoyancy is tendency to float. ठीक है, अब इससे एक तीसरा वर्ड आता है जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे वो लोग ने दी है, buoyant force. Buoyant force is an upward force exerted by the fluid on a body immersed in it. Buoyant force एक upward force होता है which is exerted by the fluid on a body immersed in it. Buoyant force opposes the weight of an object immersed in that fluid. ठीक है, अब buoyant force के बारे में ज्यादा बात करने से पहले कुछ चीजें मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो लिसन टू मी केयरफुली एंड थिंक अबाउट इट कि क्या तुमने ये कभी एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया। ठीक है, कभी भी तुम स्विमिंग पूल में जाते हो, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है उसमें तुम्हारा स्विमिंग पूल में जाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी मैंने जो अंडर वाटर स्विमिंग की बात कही थी, क्योंकि ये चीज़ है, खुद को जब एक्सपीरियंस करनी है तो खुद पानी में उतरना पड़ता है। हम जो फ्लूइड्स या फ्लूइड प्रेशर या फिर बोयंसी की बात करेंगे तो तुम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, देख के तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, लेकिन खुद जब तुम पानी में उतरोगे, स्विमिंग पूल में जाओगे, अंडर वाटर जाओगे, तभी तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो अगर तुम्हें स्विमिंग नहीं आता है तो ये और एक रीजन मिल गया तुम्हें सीखने के लिए, और एक मेन रीजन है कि पानी में सरवाइव करना तुम्हें आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू सर्वाइव इन वाटर, दैट इज यू शुड नो हाउ टू स्विम। ठीक है, दैट इज अ वेरी हेल्पफुल स्किल, सर्वाइवल टेक्निक। ठीक है, लेकिन बोयंसी समझने के लिए भी स्विमिंग पूल में उतरना जरूरी है। स्विमिंग ना जाओ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू हैव बीन इनसाइड अ स्विमिंग पूल, तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि स्विमिंग पूल में उतरने से ऐसा लाइट फील होता है,
हल्का महसूस होता है। जैसे तुम्हें कोई ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर हो रहा है तुम्हारे बॉडी के ऊपर, तो ये फोर्स कौन एक्सर्ट करता है? ये स्विमिंग पूल का पानी, जो एक फ्लूइड है, वो एक्सर्ट करता है। जब भी किसी बॉडी को तुम फ्लूइड में इमर्स करोगे, तो वो बॉडी के ऊपर फ्लूइड एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिससे वो बॉडी में जो टेंडेंसी क्रिएट होगी वो होगी टू फ्लोट। तो बॉडी में जो टेंडेंसी आती है फ्लोट करने की, दैट इज बोयंसी, वो किसकी वजह से आती है? It is because the upward force exerted by the fluid in which the body is immersed. जिस फ्लूइड में बॉडी को हम डुबाते हैं, इमर्स करते हैं, उस फ्लूइड की वजह से, उस फ्लूइड का जो अपवर्ड फोर्स है बॉडी के ऊपर, ठीक है, वो अपवर्ड फोर्स, उसको जिसको हम बोयंट फोर्स बोलते हैं, उसकी वजह से बॉडी में एक टेंडेंसी आती है कि वो लाइट फील करता है, हल्का फील करता है, और वो फ्लोट करता है। ऐसा लगता है कि वो फ्लोट हो सकता है। कोई भी बॉडी, कोई भी बॉडी, तुम अपनी खुद की जब एग्जांपल लेते हो, तो तुम जब स्विमिंग पूल में उतरते हो, यू फील लाइटर, यू फील लाइटर, यू कैन। और एक काम करना, स्विमिंग पूल में कोई हैवी चीज लेके जाना कभी, और उसको पानी के अंदर डुबा देना, और फिर उसको उठाने की कोशिश करना, इजीली उठा पाओगे, क्योंकि वो हैवी चीज पे पानी भी तुम्हें हेल्प कर रहा है उसको उठाने के लिए ऊपर की तरफ, बिकॉज फ्लूइड इज एक्सर्टिंग buoyant फोर्स ऑन दैट बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हैवी चीज भी लाइट फील होता है जब उसको पानी के अंदर हम इमर्स करते हैं। सो दैट इज ड्यू टू द buoyant फोर्स exerted by the fluid on the body which is immersed in it। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं क्या है, थियरी भी देखना पड़ेगा। क्या है, एक एक्टिविटी यहाँ पे समझाया है, देखते हैं। टेक अ basketball and place it in a tub filled with water as shown in the figure. You will observe that the ball floats. If m is the mass of the ball, then its weight W, which is equal to mg, acts vertically downwards। मतलब ये जो बॉल है जिसको तुम पानी के अंदर तुम इमर्स कर रहे हो, उसका वेट जो है W, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और वेट हमेशा किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी ले लो, सपोज यहाँ पे एक सर्कुलर बॉडी लिया है, बॉल, ठीक है, कोई भी बॉडी का जो वेट है, इट ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसका सिंबल है W, वेट का सिंबल है W, और उसका फॉर्मूला है mg। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है ये, W इज इक्वल टू mg। ये कहाँ पे एक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ से एक्ट करेगा? फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नाउ सिंस द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम व्हाइल फ्लोटिंग, इक्विलिब्रियम का मतलब वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे, और उस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर एक बॉडी पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है फिर भी वो रेस्ट पे है, इसका मतलब है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा है, since the ball is in equilibrium while floating, a force equal to mg must be acting on the ball vertically upwards. This force is called buoyancy or buoyant force or upthrust। नाम याद रखना ये वाला, लास्ट वाला। buoyant force तो मैंने तुम्हें बताया, the force due to buoyancy, the force which creates the tendency to float in any body। और उसका दूसरा नाम क्या है? upthrust। ये thrust ही है, परपेंडिकुलर फोर्स ही है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये B1 क्या है? B1 इज द अप थ्रस्ट। W क्या है? वेट। वेट कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करता है? डाउनवर्ड। और अप थ्रस्ट या बोयेंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करता है? अपवर्ड। और ये दोनों फोर्स जब इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं तो क्या होता है? ये दोनों फोर्स जब इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं तो बॉडी क्या करती है? फ्लोट करती है। कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। सो B1 इज इक्वल टू W। B1 इज इक्वल टू W का मतलब क्या है? द अपवर्ड buoyant force or upthrust is equal to the weight of the downward weight of the body, and that means the body will float, it is in equilibrium,
If you press the ball by a force F such that ball is immersed in the water to a greater depth and hold it there, the ball is in equilibrium then also. मतलब अगर थोड़ा इसको ऊपर से एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट करके इसको थोड़ा और डुबाएंगे हम नीचे पानी में, तभी भी वो बॉल तो इमर्स्ड ही रहेगा पानी के अंदर, ठीक है, तभी भी वो बॉल इमर्स्ड ही रहेगा पानी के अंदर. सो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. मतलब बॉल अभी भी इक्विलिब्रियम में, तो ये जो B2 है, अभी जो नया बोयंट फोर्स है, it is equal to the sum of external force exerted on the ball plus the weight of the ball. मतलब अब buoyant force बढ़ गया है, ठीक है, अब buoyant force ज्यादा हो गया है पहले से, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ये फ्लोटिंग बॉडी पे नीचे की तरफ, तो buoyant force उतना बढ़ जाएगा. सो इसका मतलब क्या है कि buoyant force बढ़ता जाएगा अगर बॉडी को और ज्यादा इमर्स किया टू अ ग्रेटर डेप्थ इनसाइड द फ्लूइड. जितना ज्यादा इमर्स करोगे उतना ज्यादा बोएंट फोर्स उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा फ्लूइड, ठीक है. द सेम ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूज टिल द बॉल इज नॉट कंप्लीटली इमर्स्ड इन द लिक्विड. और जब ये बॉल को तुम रिलीज करोगे तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन व्हेन द बॉल विल बी रिलीज्ड? इट विल मूव अपवर्ड्स. कैन यू टेल मी व्हाई? व्हाई विल द बॉल मूव अपवर्ड? बिकॉज जब बॉल को रिलीज करोगे तो जो अपवर्ड फोर्स है तुम हटा रहे हो. इफ यू रिमूव द अपवर्ड फोर्स, द डाउनवर्ड सॉरी जो डाउनवर्ड फोर्स है जो तुम एक्सर्ट कर रहे हो वो तुम हटा रहे हो. तो इफ यू रिमूव द डाउनवर्ड फोर्स F, the buoyant force will become greater than the upward force. The buoyant force will become greater than the weight of the ball that is in downward direction, and the ball will move upward. ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा पानी में खेलना पड़ेगा. प्लीज अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटे पानी में खेलने के लिए तो मेरा नाम मत लेना, लेकिन इसको समझने के लिए यू मस्ट हैव डन इट यार. शायद तुम स्विमिंग भी जानते हो, तुम पानी में खेले भी हो, तो तुम्हें पता है कि हाउ बॉडीज बिहेव व्हेन दे आर सबमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है. तो ये समझने के लिए ना, ये सारी चीजें समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो इफ यू अंडरस्टैंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारे आंसर्स तुम्हें मिल जाने चाहिए, ठीक है. आर्किमिडीज ने सबसे पहले ये सारा पानी में ये सारा खेल किया था और उसको समझ में आया था कि अच्छा ये बोएंट फोर्स होता है, वो ऊपर की तरफ एक्ट करता है, इसलिए चीजें फ्लोट करती है. तो उसने फ्लोटेशन को बहुत अच्छे से समझा था आर्किमिडीज. तो आर्किमिडीज कौन था तुम्हें पता है उसके बारे में? उसकी स्टोरी पता है? Archimedes was a Greek philosopher, as well as he was a mathematician, a physicist, and much more. He was also an uh, astronomer. मतलब उसको हेवनली बॉडीज का भी नॉलेज था, फिजिक्स का भी नॉलेज था, मैथमेटिक्स का भी नॉलेज था, वो फिलोसोफर भी था, राइट. तो काफी नॉलेजेबल आदमी था आर्किमिडीज in the Greek times. Okay, that is, you can say, more than 2000 years ago. I don't know the exact. मैं तुम्हें कुछ भी बोल रहा हूँ, but I don't know the exact year in which Archimedes. Not more than 2000 years ago. I'm sure not more than that. I'm not sure. So you can search about Archimedes वो कब था. लेकिन उसकी एक स्टोरी है. आर्किमिडीज की स्टोरी ऐसी है कि लेट मी, अच्छा मैं तुम्हारे साथ ये स्टोरी शेयर करूंगा ऑन योर ग्रुप. अभी मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू शो other people's video in my video in YouTube, but I will share the link of Archimedes' story regarding how he uh, discovered certain important principles of flotation, uh, and how it is helpful to us today. So let's start with Archimedes' principle. Okay, what is Archimedes' principle? Before that, we need to do some experiments. So consider a container C1. एक कंटेनर है C1, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, filled with water up to level from where pipe P extends out. तो यहाँ तक पानी भरा है, लेवल तक, वहां से पाइप P बाहर निकल रहा है. The other end of pipe P opens to a small container C2.
ये दूसरा कंटेनर है C2 जो खाली है, विच इज प्लेस्ड ऑन अ वेइंग बैलेंस, इसको रखा है एक वेइंग बैलेंस के ऊपर, डिजिटल वेइंग बैलेंस जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है। आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ द कंटेनर C2 स्टिल दिस वेइंग बैलेंस रीड्स 0 0, मतलब ये कंटेनर का वेट नेग्लिजिबल समझ लो। A block B hangs on the spring balance S which shows a reading of 7 kg approximately। हम लोग मान सकते हैं कि एक ब्लॉक B को यहाँ पे हमने हैंग किया है स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर, और ये ब्लॉक B का जो वेट है वो है 7 kg। Number one, first thing which we will do is, if we partially immerse the block in the water, we observe that some water flows out from C1 to C2 through P। मतलब कुछ, अगर हम लोग ये ब्लॉक को नीचे की तरफ इसको पार्शियली इमर्स करेंगे, पार्शियली इमर्स करना मतलब टू सबमर्ज इट पार्शियली, जस्ट हाफ और मोर देन हाफ और लेस देन हाफ, बट पार्शियली, थोड़ा सा उसको नीचे सबमर्ज करना है ब्लॉक को, तो पानी कुछ ओवरफ्लो होके पाइप पी से निकल के कंटेनर C1 से C2 में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। द वेइंग मशीन शोज अ रीडिंग ऑफ 1 kg एंड लॉस ऑफ रीडिंग इन द स्प्रिंग बैलेंस इज ऑल्सो 1 kg। मतलब जैसे ही तुमने उसको पार्शियली इमर्स किया, यहाँ पे जो 7 kg वेट है वो कम होके 6 kg हो जाएगा, और यहाँ पे जो 0 kg वेट है वो 1 kg हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? This means that weight of the water displaced, understand these terms, weight of the water displaced, weight of the water displaced मतलब, weight of the water displaced मतलब जब तुम पानी को, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर सबमर्ज करते हो, then some water is displaced, overflows। डिस्प्लेस का मतलब होता है अपनी जगह से मूव हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना, ठीक है। तो कुछ वाटर अपनी जगह से मूव हो जाता है, सम वाटर इज डिस्प्लेस्ड। कौन डिस्प्लेस करता है वाटर को? ब्लॉक, ब्लॉक डिस्प्लेस करता है, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू द लॉस इन वेट ऑफ द ब्लॉक। सम वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक एंड द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द लॉस इन वेट ऑफ द ब्लॉक। जितना ब्लॉक का वेट कम हुआ उतना ही वाटर भी डिस्प्लेस हुआ। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने जब ब्लॉक को हवा में, एयर में पकड़ा हुआ था तो उसका वेट 7 kg था। अब जब मैंने वो ब्लॉक को अंदर पानी के अंदर इमर्स किया तो उसका वेट कम होके 7 kg से 6 kg कम हो, 6 kg हो गया। तो कितना कम हुआ ब्लॉक का वेट पानी में इमर्स करने से? 1 kg। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं और एक पूछ रहा हूँ, तो मैं प्लीज आंसर योरसेल्फ, क्यों कम हुआ ये ब्लॉक का वेट? ब्लॉक का वेट इसलिए कम हुआ क्योंकि उसके ऊपर वाटर ने क्या एग्जर्ट किया? अप थ्रस्ट एग्जर्ट एग्जर्ट किया, ठीक है। तो अच्छा, और भी एक चीज हुई है, ब्लॉक को हमने पानी के अंदर इमर्स किया, पानी ने ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स एग्जर्ट किया, जिसको हम अप थ्रस्ट या बोएंट फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक का वेट कम हुआ, और कुछ वाटर डिस्प्लेस भी हो गया, कुछ वाटर ओवरफ्लो हुआ, ओवरफ्लो होके ये पाइप पी से निकल के कंटेनर C2 में चला गया। और मजे की बात यह है कि जितना वाटर का वेट है जो ओवरफ्लो हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज इक्वल टू द लॉस इन वेट ऑफ द ब्लॉक। अगर ब्लॉक का वेट 1 kg से कम हुआ तो 1 kg वाटर ब्लॉक ने डिस्प्लेस किया, ठीक है। ये सेम चीज आर्किमिडीज ने स्टडी की थी, ठीक है, और उसने ये फ्लोटेशन को स्टडी करने के लिए इसी ऑब्जर्वेशन का यूज किया है। प्लीज कीप इट इन योर माइंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ वी कंप्लीटली इमर्स द ब्लॉक इन वाटर। अब ब्लॉक को पूरा का पूरा इमर्स कर देंगे। वी ऑब्जर्व दैट वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक इज 5 kg, ठीक है। तो हमने ये सपोज ऑब्जर्व किया कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक आफ्टर कंप्लीटली इमर्सिंग इट इज 5 kg। मतलब अब जो रीडिंग यहाँ पे दिख रहा है, ये कंटेनर C2 के नीचे जो वेइंग बैलेंस है उसके ऊपर जो रीडिंग दिख रहा है हमें, वो दैट इज 5 kg। एंड कैन यू टेल मी कि अगर ब्लॉक ने 5 kg वाटर डिस्प्लेस किया तो ये स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग कितना होगा? अभी ब्लॉक ने अगर 5 kg वाटर को डिस्प्लेस किया है, then it means that the weight of the block will be reduced by 5 kg. That means the upthrust on the block will be equal to 5 kg. That means now the spring balance should show the new weight
as 7 kg minus 5 kg, that is 2 kg. ठीक है, रीडिंग in the spring balance is 2 kg and loss in weight of the block is 5 kg. ब्लॉक का वेट उतना ही कम होगा जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा वो। अगर 5 kg वाटर डिस्प्लेस करता है तो ब्लॉक का वेट 5 kg कम हुआ है और उसका न्यू वेट 2 kg हो गया। ठीक है, अगेन वी रीच सेम कंक्लूजन that weight of the water displaced by the block is equal to the loss in weight of the block, but there is one more addition to it. ये कंक्लूजन में और एक चीज हम ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? that the more amount or weight of the body you submerge inside a fluid, more water will be displaced by it and more upthrust will be exerted on it and more weight it will lose. मतलब जितना ज्यादा किसी भी बॉडी को पानी में सबमर्ज करोगे वो उतना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा और उतना ज्यादा उसके ऊपर अपथ्रस्ट एक्सर्ट होगा। अपथ्रस्ट कौन एक्सर्ट करेगा उसके ऊपर? फ्लूइड। ठीक है, मोर सबमर्शन मोर अपथ्रस्ट मोर डिस्प्लेस्ड वाटर, और जितना ज्यादा अपथ्रस्ट उतना बॉडी का वेट ज्यादा कम हो जाएगा, उतना मतलब बॉडी का वेट कम हो जाएगा, याद रखो ये। ठीक है, अब देखो कुछ आगे और भी चीजें बता रहे हैं। What happens when the block is further immersed? No more water will be displaced by the block and therefore reading shown by the weighing machine and the spring balance remains unchanged. तो ये क्या बोल रहे हैं पता है कि अगर ब्लॉक को कंप्लीटली इमर्स कर दिया, ये जो लास्ट डायग्राम में दिख रहा है, और उसके बाद और इमर्स करते गए ब्लॉक को नीचे, तो अब वो ज्यादा फ्लूइड को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ब्लॉक का जितना अमाउंट, उस ब्लॉक की बॉडी का जितना अमाउंट पानी के अंदर है, ठीक है, वो अमाउंट धीरे धीरे तुम बढ़ाते गए, ठीक है, तो तुम्हारा अपथ्रस्ट या फिर वाटर डिस्प्लेस ज्यादा होगा। ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हें एक डायग्राम से समझाता हूँ। वेट, सो सपोज वी कंसिडर 3 कंडीशंस। तीन कंटेनर हम लोग ले लेते हैं। एक्चुअली एक ही कंटेनर है लेकिन 3 केसेस है, केस ए, केस बी एंड केस सी। तीनों में पानी है। वाटर इज अ फ्लूइड, वी नो वेरी वेल। सो फ्लूइड प्रेशर का ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एंड ऑल्सो बोयंसी, बोयंसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट। So in the first case the object is just touching the surface. In the second case the object is half inside the liquid in the container and half outside. In the third case the object is below the surface of the liquid in the container. And there is one more case which I forgot to show. और एक केस है जहां पे ऑब्जेक्ट को और अंदर सबमर्ज किया है। ठीक है, ये 4 केसेस है, ए, बी, सी और डी। अब यहां पे अपथ्रस्ट होगा, लेट्स से कुछ वैल्यूज ले लेते हैं ना, वैल्यू सही रहेगा। यहाँ पे सपोज अपथ्रस्ट होगा 1 न्यूटन, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर से समझ लो। ठीक है, अपथ्रस्ट होगा 1 न्यूटन। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भी होगा 1 न्यूटन, क्योंकि जितना अपथ्रस्ट है उतना ही वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होता है। ठीक है, एंड कैन यू ऑल्सो टेल मी दैट डिक्रीज इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेट कितना कम होगा? मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूं, देखो, let me write it properly, this all things.
मैंने काफ़ी रैंडमली लिखा है, सो तुम्हें एक अच्छे से आइडिया आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है ये। अगर ये सही से समझ में नहीं आया तो अपथ्रस्ट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर ऊपर से तो सब लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो चीज़ मुझे बताना है दैट इज अपथ्रस्ट। सेकेंड जो चीज़ बताना है मुझे दैट इज वेट ऑफ लिक्विड displaced. Third thing which I want to tell you is decrease in weight of object submerged. ठीक है, ये तीन चीजें मुझे बतानी है इन ऑल द फोर केसेस। एक आर्बिट्री एग्जांपल लेके, रैंडम एग्जांपल लेके मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो अपथ्रस्ट, सपोज यहाँ पे वी कैन सी दैट द बॉडी इज जस्ट टचिंग द, इज जस्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सो अपथ्रस्ट सपोज यहाँ पे कितना है, 1 न्यूटन है। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड भी कितना होगा, 1 न्यूटन। तो डिक्रीज इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कितना होगा, 1 न्यूटन। मतलब जितना अपथ्रस्ट होता है उतना ही वाटर का वेट डिस्प्लेस होता है और उतना ही वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी डिक्रीज होता है। मतलब सपोज ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन था, तो उसको अगर पानी की सरफेस पे रखेंगे तो उसका वेट अब हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाय 1 न्यूटन, एंड अब न्यू वेट हो जाएगा उसका 9 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मेन बात यह है कि उसको मैंने थोड़ा और अंदर सबमर्ज किया, तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट हो जाएगा 2 न्यूटन। अब अगर अपथ्रस्ट बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि उसने ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस किया है, लिक्विड का लेवल जो डिस्प्लेस हुआ है वो ज्यादा हो गया है, मतलब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज आल्सो 2 न्यूटन, और बॉडी का वेट और 2 न्यूटन से कम हो जाएगा, मतलब 2 न्यूटन और कम हो जाएगा, मतलब टोटल बॉडी का जो वेट होगा दैट विल बी डिक्रीज्ड बाय 2 न्यूटन। अब मैंने बॉडी को पूरा सबमर्ज कर दिया है। अब बॉडी को तो डेफिनेटली मैं ज्यादा सबमर्ज कर रहा हूँ, मतलब अपथ्रस्ट ज्यादा ही लगेगा, और यहाँ पे अपथ्रस्ट लगेगा 4 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल। सो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल ऑल्सो बी 4 न्यूटन, एंड डिक्रीज इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बी 4 न्यूटन। अब ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सबमर्ज था, इसको मैं ग्रेटर डेप्थ पे लेके गया हूँ। ग्रेटर डेप्थ पे अपथ्रस्ट बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? बिकॉज now liquid pressure is exerted on the object from all the side and it is equal, almost equal। ठीक है, तो लिक्विड प्रेशर तो ऑन ऑल द साइड्स विल कैंसल आउट ईच अदर, मतलब ये ऑब्जेक्ट को कितना भी अंदर लेके जाओ, जो टोटल अपथ्रस्ट अब उसके ऊपर होगा वो 4 न्यूटन ही रहेगा। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल also remain 4 न्यूटन, एंड डिक्रीज इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल also remain 4। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को पूरा सबमर्ज करने से भी उसमें अपथ्रस्ट बढ़ा नहीं। एक बार ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर दिया तो मैक्सिमम अपथ्रस्ट उसके ऊपर एक्सर्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। यही ये लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं और एक बार। What happens when the block is further immersed? No more water will be displaced by the block, and therefore reading shown by the weighing machine and spring balance will remain same. Why the spring balance shows a loss in weight of the block when the block is immersed in water? This is because the buoyant force or upthrust acting vertically upwards exerted by the fluid in upward direction, right? The loss in weight is equal to the buoyant force. The loss in weight is equal to the buoyant force. जितना buoyant force होगा उतना loss in weight होगा, ये तो मैंने तुम्हें बताया था। So एक conclusion ये लोग ने निकाला है that buoyant force is directly proportional to the volume of liquid displaced, या weight of the liquid displaced, ये भी बोल सकते हो। One more thing, if two bodies of different material have same volume, then buoyant force acting on them when completely immersed in water is the same। बहुत ही डीप चीज बता रहे हैं ये लोग कि ये जो बुoyant फोर्स है ये सिर्फ वेट पे डिपेंड नहीं करता है, एक्चुअली ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है।
वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सम बॉडी। अगर दो बॉडीज है, दोनों अलग अलग मटेरियल की बनी है, दोनों का वेट अलग अलग है, लेकिन अगर दोनों को मैं इमर्स करूंगा, दोनों का वॉल्यूम सेम है, और दोनों को मैं अगर पानी में इमर्स करूंगा तो दोनों सेम वाटर डिस्प्लेस करेंगे। मतलब वाटर जो डिस्प्लेस होता है, volume of liquid displaced, that is directly proportional to the buoyant force, or you can say buoyant force is directly proportional to the volume of liquid displaced। इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल अलग से देना चाहता हूँ। सपोज मेरे पास दो कंटेनर है, सपोज आई हैव टू कंटेनर्स, और मेरे पास ये दोनों में वाटर फील्ड है ऑफ कोर्स, and if I have a balloon filled with air, ठीक है, and I have the same size balloon, same size balloon filled with लेट्स से सैंड। इसमें सैंड भर दिया मैंने, इसमें एयर भरा है, सैंड भरा है। सेम साइज मतलब क्या है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। इसका वॉल्यूम कितना है v, इसका भी वॉल्यूम कितना है v, दोनों का वॉल्यूम सेम है। व्हेन आई इमर्स देम इनसाइड दिस लिक्विड, लेट मी जस्ट इमर्स देम, ठीक है, अगर मैं उनको इमर्स करता हूं पानी के अंदर, ठीक है, तो दे विल डिस्प्लेस द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग बना सकते हैं, लिख के तुम भी नोट कर लेना। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, यहाँ पे दोनों बलून डिफरेंट है, एक के अंदर एयर और एक के अंदर सैंड है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विथ सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब जितना स्पेस ऑक्यूपाई ये बलून कर रहा है उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई ये वॉल्यूम ये बलून कर रहा है। सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विथ सेम वॉल्यूम displace same amount of liquid या फिर फ्लूइड, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्ट जिनका सेम वॉल्यूम है वो सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज सेम buoyant force is exerted on them, दोनों के ऊपर सेम buoyant force लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। मतलब buoyant फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट से कोई लेना देना नहीं रखता, किससे लेना देना रखता है, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से, ठीक है। सो दैट शोज दैट buoyant फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यही चीज वो लोग बताने की कोशिश कर रहे थे जो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताई है तुम्हें, कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को जिनका सेम वॉल्यूम है अगर तुम लिक्विड में इमर्स करोगे तो दे विल डिस्प्लेस द सेम amount of liquid, that means same buoyant force will be exerted on them by the liquid, ठीक है। so buoyant force is directly proportional to volume। लेकिन 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 एक चीज बताओ कि ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों फ्लोट करेंगे। बलून फिल्ड विथ एयर ऊपर आ जाएगा, बलून फिल्ड विथ सैंड कहां पे जाएगा, नीचे। क्यों, क्योंकि बलून फिल्ड विथ सैंड का वेट ज्यादा है, तो इसमें अभी दो फोर्सेस होंगे, ठीक है। लेट मी शो यू।
ये जो बलून है फिल्ड विद सैंड, उसके ऊपर दो फोर्सेस होंगे, एक नीचे की डायरेक्शन में जो होगा वेट ऑफ द बलून, और एक ऊपर की डायरेक्शन में जो होगा बोयंट फोर्स, एफ बी मतलब बोयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। और क्योंकि वेट इज ग्रेटर देन बोयंट फोर्स, तो ये क्या करेगा, इट विल सिंक, इट विल सिंक। लेकिन यहां पे भी दो फोर्सेस होंगे, याद रखना, दोनों पे बोयंट फोर्स सेम है, लेकिन अब कौन फ्लोट करेगा और कौन सिंक करेगा उसके ऊपर वो कौन डिसाइड करेगा। यहाँ पे वेट नीचे है, बोयंट फोर्स ऊपर है, लेकिन वेट इज ग्रेटर देन बोयंट फोर्स, आई एम सॉरी, बोयंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, उल्टा लिखा मैंने, बोयंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, सो इट विल फ्लोट। ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, तो अपथ्रस्ट अगर ज्यादा है तो बॉडी को फ्लोट करवाएगा वो। लेकिन अब बोयंट फोर्स दोनों केसेस में सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम। ठीक है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ वाटर इफ वी टेक लिक्विड लाइटर देन वाटर, जैसे केरोसिन या फिर ऑयल, then the volume displaced by the block on complete immersion will be the same, but the buoyant force will be less. Instead of water, if we take a liquid lighter than water, then volume displaced by the block on complete immersion will be the same, but the buoyant force will be less. This is because density of lighter liquid is less than that of water. ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस तो सेम रहेगा, अगर दूसरा लिक्विड लिया, कैरोसिन लिया, ऑयल लिया, लेकिन बोयंट फोर्स उसमें कम हो जाएगा। तो मतलब बोयंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इससे हमें समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है कि बोयंट फोर्स exerted by a fluid on a solid immersed in it buoyant force exerted by a fluid on a solid immersed in it depends on number 1 volume of object immersed, volume of object immersed, ठीक है, and number 2 density of fluid, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड में अगर किसी सॉलिड को हमने इमर्स किया, तो उसके ऊपर जो बोयंट फोर्स है वही दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स, जितना ज्यादा वॉल्यूम इमर्स करोगे उतना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा और उतना ज्यादा बोयंट फोर्स होगा। लेकिन एक बार पूरा वॉल्यूम इमर्स हो गया बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, फ्लूइड के अंदर, एक बार पूरा का पूरा सॉलिड पानी के अंदर चला गया, फिर बोयंट फोर्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे ये बोयंट फोर्स डिपेंड करता है। फ्लूइड की डेंसिटी जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा वो बोयंट फोर्स उस फ्लूइड में इमर्स किए गए हुए सॉलिड के ऊपर एक्सर्ट करेगा। दो एग्जांपल देता हूं डेंसिटी का, एक तो लेता हूं वाटर और एक मर्क्यूरी। किसकी डेंसिटी ज्यादा है? अब तुम बोलोगे सर डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, ये तो बता दो पहले। ठीक है, तो डेंसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट बोयंट फोर्स। अगेन ये लो डेंसिटी आ गई, डेंसिटी का बात किया था और डेंसिटी आ गई। सो डेंसिटी क्या है, देखो डेंसिटी पढ़ाने से पहले ही वो लोग ने डेंसिटी का फॉर्मूला दे दिया। वी विल स्टडी डेंसिटी इन डिटेल अहेड, जस्ट अहेड, बट बिफोर दैट नो दैट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी बॉडी का जो डेंसिटी है ना, दैट इज द मेजर ऑफ इट्स हेवीनेस। कितना ज्यादा मास कितनी कम जगह में, उतना ज्यादा डेंसिटी हो। कम मास अगर ज्यादा जगह में है तो डेंसिटी कम है। डेंसिटी इज द मेजर ऑफ हेवीनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, जो भी लिक्विड्स लाइटर है, जैसे कि केरोसिन है, ऑयल है, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज लेस इवन व्हेन द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज सेम। मतलब बोयंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जितना ज्यादा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उतना ज्यादा बोयंट फोर्स एक्सर्ट करेगा वो लिक्विड किसी भी ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसमें इमर्स करेंगे।
It has been also found that buoyant force also depends on the acceleration due to gravity. Wow. Third thing on which buoyant force depends. दो तो मैंने यहाँ पे ही बता दी थी. Buoyant force exerted by a fluid on a solid immersed in it depends on volume of the object immersed and density of the fluid. And the third thing on which the buoyant force depends is the acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने लास्ट पार्ट ग्रेविटेशन में पढ़ा. सो ये तीन चीजें हैं जो बोएंट फोर्स डिसाइड करती है कि कोई भी फ्लूइड में जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करेंगे तो उसके ऊपर कितना बोएंट फोर्स होगा. वो ये तीन चीजें डिसाइड करती है: वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, सो तीन कंक्लूजन हमने यहां पे कर दिए. तो बोएंट फोर्स का एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूं. VDG. VDG मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स, D is density of liquid, G is acceleration due to gravity. ठीक है. अच्छा, buoyant force also is directly proportional to the weight of the object. जितना ज्यादा weight of the object होगा उतना buoyant force ज्यादा होगा उसके ऊपर. And buoyant force is also directly proportional to the weight of the liquid displaced. ठीक है. सो ये buoyant force के ऊपर कम या ज्यादा तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई. और ये जो पूरी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल रही है दैट इज ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल. वो प्रिंसिपल भी अभी आएगा, मैं बताऊंगा तुम्हें. अ बॉडी प्लेस्ड इन अ गैसियस मीडियम इज ऑल्सो एक्टेड बाय अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द गैस डिस्प्लेस्ड. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विड में बोएंट फोर्स होता है, गैस में भी होता है, मतलब एयर में भी होता है. एयर का अगर प्रेशर हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बोएंट फोर्स क्यों नहीं हो सकता. तो तुम अगर इसका एक एग्जांपल देखोगे तो एक बलून जिसमें हमने हीलियम भरा है, कोई हीलियम गैस होता है ना, जो बलून हल्के फुल्के होते हैं, वो हीलियम गैस भरा हुआ जो बलून है, अगर मैं उसको रिलीज कर दूं तो क्या होगा. इट विल गो अप इन द स्काई. क्यों? क्योंकि हीलियम गैस एयर से हल्का है. तो हीलियम गैस फिल्ड बलून के ऊपर एयर अपथ्रस्ट एक्सर्ट करता है, तो इसलिए वो ऊपर चला जाता है. ठीक है, वो कहां तक ऊपर जाता है? स्पेस में नहीं जाता है, वो सिर्फ उस लेवल तक ऊपर जाता है जहां तक बाहर का डेंसिटी और अंदर का डेंसिटी सेम नहीं हो जाता. मतलब हीलियम का डेंसिटी और एयर का डेंसिटी जब तक सेम नहीं होता तब तक वो ऊपर जाता रहता है. अच्छा, वहां पे जाके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो कम हो जाएगा हायर हाइट्स पे, तो वो बलून क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है. So that is an example of upthrust exerted on the in the gaseous medium. So the above facts, जितनी भी हमने बातें की buoyant force के बारे में, the above facts has been summarized in Archimedes principle, which states that, अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट देखो और नोट कर लेना, इसको लर्न भी करना है. That the upward force acting on a solid body which is partially or completely immersed in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced. कोई भी फ्लूइड में पार्शियली या कंप्लीटली इमर्स्ड हम किसी भी ऑब्जेक्ट को करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. एंड दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बोयंट फोर्स और अपथ्रस्ट. ठीक है, ये देखो अभी मैंने बलून का एग्जांपल दिया और अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने यहाँ पे लोग ने एग्जांपल दिया. देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू गैसेस एज वेल. Let us take an example to understand this. A balloon filled with helium gas rises up in the air. The gravitational force on the balloon is acting downward, but at the same time, buoyant force due to the volume of air displaced acts upward. Since buoyant force is greater than gravitational pull, the balloon rises up. Buoyant force का फॉर्मूला क्या है? याद रख लेना, VDG. V क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज. D क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. रिमेंबर इट. ओके, ये आएंगे हमें न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग. एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स. शिप्स क्यों फ्लोट करती है? क्योंकि शिप्स के ऊपर वाटर अपथ्रस्ट एक्सर्ट करता है. ठीक है, तो शिप्स की डिजाइनिंग में हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि शिप के वेट से बोएंट फोर्स ज्यादा होना चाहिए.
ठीक है, तो बुओयंट फोर्स ज्यादा कैसे होगा, क्योंकि शिप का वॉल्यूम हमें बड़ा रखना है, इसलिए शिप हॉलो होती है अंदर से, मतलब अंदर से उस बड़ी होती है शिप, वॉल्यूम उसका ज्यादा होता है। वॉल्यूम ज्यादा मतलब ज्यादा अपथ्रस्ट उस पर एग्जर्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर एग्जर्ट करेगा और वो फ्लोट करेगी। तो शिप्स की डिजाइनिंग में आर्किमिडीज प्रिंसिपल काफी यूजफुल है। लैक्टोमीटर इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लैक्टोमीटर क्या है? It is a device which is used to determine the purity of sample of milk. Hydrometer is also based on Archimedes principle. It is used to determine the density of liquids. Right? So ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी. Now we come to sinking and floating objects, understanding sinking and floating as a phenomena by the laws of flotation. सिर्फ सॉलिड बॉडीज के लिए हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक्टिविटी हमें करनी है यहाँ पे। टेक अ सॉलिड आयरन पीस एंड वुडन ब्लॉक ऑफ सेम मास। 1 kg का आयरन पीस ले लो और 1 kg का वुडन मास ले लो। टेक अ बकेट हाफ फिल्ड विथ वाटर। नाउ प्लेस द आयरन पीस एंड वुडन ब्लॉक ऑन द surface. You will observe that iron sinks, iron block sinks, whereas wooden block floats. Why does this happen? If you place a block of pine and block of oak, pine wood and oak wood in water, you will find that block of oak immerses more than the block of pine. Why does this happen? तीनों सॉलिड है, लेकिन एक इमर्स हो जाता है, एक अंदर सिंक हो जाता है, दूसरा फ्लोट करता है और तीसरा बहुत ज्यादा फ्लोट करता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज तीनों का जो वेट है और तीनों का जो अपथ्रस्ट है वो अलग अलग है। अगर तीनों का वॉल्यूम हम सेम भी ले लें तो सेम अपथ्रस्ट तीनों पे एक्ट करेगा, राइट? बट तीनों का वेट अलग अलग है। फॉर द सेम वॉल्यूम, ओकवुड, पाइनवुड एंड आयरन ब्लॉक, दे ऑल हैव डिफरेंट डेंसिटीज। आयरन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो डूब जाता है। पाइन की डेंसिटी सबसे कम है, इसलिए वो सबसे ऊपर फ्लोट करता है। तो फ्लोटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक तो अपथ्रस्ट है, और अपथ्रस्ट से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है डेंसिटी। डेंसिटी कम होने पे बॉडी फ्लोट करता है, ठीक है? डेंसिटी कम होने से बॉडी फ्लोट करता है, और डेंसिटी अगर ज्यादा है तो बॉडी सिंक करता है। लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर derivations. Let us place a solid body whose volume is V1, density D1, in a liquid of density D2. ठीक है, एक सॉलिड बॉडी है जिसका वॉल्यूम है V1, डेंसिटी D1 है एंड लिक्विड की डेंसिटी D2 है। केस 1, फॉर द बॉडी टू सिंक, वेट ऑफ द बॉडी शुड बी ग्रेटर देन द बुओयंट फोर्स, तभी तो बॉडी सिंक करेगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट एक्ट कर रहा है बॉडी का वो ज्यादा है अपथ्रस्ट या अपवर्ड डायरेक्शन में जो बुओयंट फोर्स एक्ट कर रहा है उससे। तो W क्या है? W is weight of the body, which is mass of the body multiplied by acceleration due to gravity. B क्या है? Buoyant force, which is mass of the liquid displaced multiplied by acceleration due to gravity. G दोनों साइड से कट कर दो। मास क्या है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब जब V इंटू D1 will be greater than V into D2, V भी कट कर दो साइड से, because we always know for any body which is submerged inside liquid, the volume of body is always equal to the volume of liquid displaced. V कट कर दो तो D1 is greater than D2. So when D1 is greater than D2, density of body is greater than density of liquid, the body will sink. यही मैंने तुम्हें बताया था। अगर किसी बॉडी की डेंसिटी, किसी सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो बॉडी सिंक करेगी। इन द अबव एक्टिविटी, इफ solid iron piece sinks because the density of iron is greater than that of water.
केस 2 में कोई बॉडी फ्लोट करती है. फॉर अ बॉडी टू immerse completely and float, weight of the body should be equal to the buoyant force, that is W should be equal to V, और V into D1 should be equal to V into D2. V कट हो जाएगा और D1 is equal to D2. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऐसे फ्लोट करता है ना पानी में, पूरा इमर्स रह के भी फ्लोट करता है, तो इसका मतलब क्या है? द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी, the density of solid body is equal to the density of liquid, and then the body will immerse completely and float. बट कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी फ्लोट करता है ऐसे, मैं तुम्हें फिगर दिखाता हूँ, पार्शली फ्लोट करता है. वुड के केस में हमने ऐसा देखा है, आइस क्यूब के केस में नहीं, वुड के केस में देखा है. तो हम कभी कभी देखते हैं कि बॉडी ऐसा फ्लोट करता है, आधा पानी के ऊपर और आधा पानी के नीचे. So when a body is partially immersed and still it is floating, weight of the body is equal to the buoyant force. So volume of body multiplied by density of body is equal to volume of liquid displaced multiplied by the density of liquid, or V1 into D1 is equal to V2 into D2. That means we get D1 by D2 which is equal to V2 by V1, that is volume of liquid displaced upon volume of body. ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये हमें बताता है कि कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा और कितना वॉल्यूम बॉडी का डिस्प्लेस होगा, कितना वॉल्यूम बॉडी का इमर्स होगा. आई एम सॉरी. तो तुम्हें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है. हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हें कितना लर्न करना है और तुम्हें कितना नॉलेज होना चाहिए. ये सारी थियरी तो तुम्हें यू कैन से मोर और लेस पता चल गई है. इतना डिटेल में तुम्हारी एनसीईआरटी में इतना एक्सप्लेन भी नहीं किया है. बट एज पर मी यू शुड रिमेंबर फ्यू थिंग्स. जैसे ये टेबल में दिया है, body will sink when the density of body is greater than the density of fluid, body immersed completely and float when the density of body is equal to the density of fluid, and body immerses partially and float when the density of body is less than the density of fluid. ठीक है, तो ये जो थर्ड केस है उसमें बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम. ये आर्किमिडीज की स्टोरी है, मैं पढ़ लेता हूं तुम्हारे लिए. Archimedes was assigned a task by a king to check whether his crown is made of pure gold or whether it was made of gold alloy. ये सब स्टोरी हर एक जगह पे अलग अलग बताते हैं. कोई बताते हैं कि किंग को एक शिप बनानी थी, उसके लिए आर्किमिडीज को उसने काम दिया. कोई बोलते हैं कि किंग को अपने क्राउन को चेक करना था, इसके लिए उसने आर्किमिडीज को काम दिया. The solution to this problem came to Archimedes when he was in his bathtub. तो आर्किमिडीज पूरी रात सोचता रहा कि कैसे पता चले कि किंग का जो क्राउन है वो प्योर गोल्ड से बनाया है या नकली गोल्ड से बना है, या उसमें कोई मिक्सिंग है, इम्प्यूरिटीज है. सो आर्किमिडीज पूरा रात सोचता रहा लेकिन उसको आंसर नहीं मिला. और सुबह सुबह उसने सोचा चलो पूरी रात जागे हैं, अभी सुबह सुबह नहा लेते हैं अच्छे से. ठीक है, नहा के फिर से हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे एंड देन वी विल सी. तो वो जाता है अपने बाथरूम में, बहुत बड़ा बाथरूम है उसका, आर्किमिडीज का, जस्ट इमेजिन. और उसके सेंटर में एक बाथ टब है, फुल उसने गर्म पानी से उसको भर दिया. और कपड़े निकाल के जैसे ही वो बाथ टब में एंटर हुआ, ठीक है, तो पहले उसने एक पैर डाला अपना बाथ टब के अंदर, तो पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आया. फिर उसने दूसरा पैर डाला, पानी का लेवल थोड़ा और ऊपर आया. फिर उसने अपना बॉडी थोड़ा अंदर डाला, तो पानी का लेवल और ऊपर आया. और जब वो पूरा बॉडी उसने इमर्स किया तो पानी ओवरफ्लो होने लगा और उसको आइडिया आ गया कि क्या हो रहा है. तो तुरंत चिल्लाया, यूरेका. यूरेका मतलब आई गॉट इट. ठीक है, यूरेका यूरेका चिल्लाया. और जैसे ही उसको समझ में आ गया कि द मोर अमाउंट ऑफ the more volume of a body which is immersed in the fluid, more upthrust is it experiences and more liquid is displaced by it.
ठीक है, तो ये जैसे ही उसको समझ में आया, वो बाथ टब से बाहर निकला और इतना एक्साइटेड था कि वो अपने कपड़े पहनना भी भूल गया। यहाँ पे लिखा है, मैं खुद नहीं बना रहा हूँ ये स्टोरी। ही वॉज सो एक्साइटेड विथ हिज आइडिया दैट ही रैन आउट ऑन द स्ट्रीट विदाउट पुटिंग ऑन हिज क्लोथ। नंगा भागा और गया किंग के पास और बोला, यूरेका यूरेका। तो किंग बोला, क्या पागल हो गया क्या? सुबह सुबह ये बुढ़े ने हम यही दिखाना था? ये क्या, इसको कपड़े डालो यार, इसके ऊपर कोई टॉवेल वॉवेल डालो। क्या है ये सुबह सुबह? यही मुझे देखने का बाकी रह गया था। तो सबने उसको कपड़े वपड़े पहनाए। फिर उसने बोला, क्या है भाई बताओ, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो बोलता है, यूरेका। अरे ठीक है यूरेका, प्रॉब्लम क्या है यार तुम्हारा? तो बोलता है, सर आई गॉट इट किंग, आई गॉट इट दैट। कैसे आपका प्यूरिटी हम लोग चेक करेंगे आपके क्राउन का? तो हम लोग आपका गोल्ड का क्राउन लेंगे और उसको एक कंटेनर में डालेंगे, कंटेनर में वाटर है उसमें डालेंगे, और देखेंगे कितना पानी बाहर आता है, कितना पानी डिस्प्लेस होता है। ठीक है, और फिर प्योर गोल्ड का एक ब्लॉक लेंगे, उतना ही वेट का उतना ही वॉल्यूम का, वो भी डालेंगे और देखेंगे कितना वाटर डिस्प्लेस होता है। अगर दोनों सेम वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका गोल्ड का क्राउन प्योर। अगर वाटर डिस्प्ले सेम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कुछ प्यूरिटी है। तो दैट्स हाउ ही हेल्प द किंग टू फाइंड द प्यूरिटी। एक मिसकॉन्सेप्ट है, अ bowl made of steel floats on water even when density of steel is greater than that of water. It seems law of flotation are applicable in some situation and are not applicable in some situation. हमने तो अभी बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो वो सिंक करेगा। तो स्टील का बोल या फिर स्टील की बनाई हुई शिप क्यों फ्लोट करती है, और स्टील का ही एक कॉइन क्यों सिंक करता है? मतलब लॉ ऑफ फ्लोटेशन एक्यूरेट नहीं है। ये एक मिस कॉन्सेप्ट है। रियल कॉन्सेप्ट ये है कि लॉज ऑफ फ्लोटेशन हमेशा एप्लीकेबल होता है। दे आर एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशंस, बट ओनली व्हेन द बॉडी इज सॉलिड विथ नो वेकेंट स्पेस enclosed विद इन इट। इसका मतलब है कि बॉडी का एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि बॉडी अगर बाउल है, स्टील का बाउल है या फिर शिप है, उसके अंदर खाली जगह भी तो है। वो खाली जगह में क्या है? एयर। तो एयर और वो मटेरियल जो स्टील का है, उसकी एवरेज डेंसिटी हमको कंसिडर करनी है। इन केस ऑफ बोल, it displaces more volume of water than its own volume due to the vacant space which contains air. If the bowl of steel is reshaped into a solid sphere, it will sink. ठीक है, तो सॉलिड चीजें जिसमें कोई एयर नहीं होती वो सिंक करती हैं, लेकिन हॉलो चीज है, हॉलो, हॉलो मतलब जिसमें एयर होता है, दैट विल फ्लोट बिकॉज वेकेंट स्पेस which is made up of air reduces the density of that solid. ये देखो, ये आदमी सी वाटर में ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। यू यू फील दिस इज अ फेक फोटो? दिस इज एब्सोल्युटली रियल फोटो। दिस इज स्विमिंग ऑन डेड सी। तो डेड सी इज नियर इजराइल। इजराइल इज अ कंट्री इन मिडल ईस्ट। वहाँ पे एक सी है, डेड सी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है और इसमें कोई भी लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो डेड सी में कोई भी ऑब्जेक्ट को जब इमर्स करते हैं तो वो फ्लोट करता है, बिकॉज वो डेड सी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, so because the density of sea water is more than river water, it is easier to swim on sea water. The density of water in dead sea is comparatively higher than other seas, therefore it is even more easier to float on a dead sea. A person floating on the sea water of dead sea is without any effort. कोई भी स्विमिंग करने की जरूरत नहीं, तुम आराम से स्विम कर फ्लोट कर सकते हो। चलो कुछ सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। A sphere of mass 5 kg. तो सबसे पहले we have got mass 5 kg and volume 2 multiplied by 10 raised to minus 4 meter cube. 2 multiplied by 10 raised to minus 4 मीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम का जो यूनिट है वो मीटर क्यूब होता है।
हम लोग डेंसिटी के बारे में जब बात करेंगे तो वॉल्यूम की भी बात करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है एंड देन हाउ टू फाइंड द डेंसिटी। एनीवेज इट इज कंप्लीटली immersed in water, find the buoyant force exerted by the water। FB हमें ढूंढना है, buoyant force exerted by the water on this sphere, and density of water dW, density of water is 1000 kg per meter cube, ठीक है। सो ये जो buoyant force है इसका फॉर्मूला है V, that is volume of object immersed, ठीक है, volume of sphere in this case multiplied by density of liquid multiplied by acceleration due to gravity। मतलब buoyant force मास पे डिपेंड नहीं करता है, उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वॉल्यूम है 2 × 10⁻⁻⁴, डेंसिटी है 1000, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें नहीं दिया है। वी कैन टेक इट एज 9.8 और 10। मैं 10 लेता हूँ फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। सो दिस विल बी 2 × 10⁻⁻⁴, 1000 × 10, अगेन 10,000 हो जाएगा, विच विल बी 10⁻⁴। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 2 न्यूटन। सब कुछ ऐसा यूनिट्स में है, 2 न्यूटन। अगर वो लोग ने जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 ली है, तो ये वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी, 2 से कम, मतलब 1.9 या कुछ। लेकिन मेरे ख्याल से बुओयंट फोर्स शुड बी अराउंड 2 न्यूटन। लेट्स चेक द आंसर। वो बहुत ज़्यादा लंबा फॉर्मूला लिख दिया है, 1.96 न्यूटन, बिकॉज दे हैव टेकन जी एज 9.8। बट हमारा जो फॉर्मूला है, बुओयंट फोर्स एज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज multiplied by density of liquid in which the object is submerged multiplied by acceleration due to gravity. It's perfect formula. Note this formula down, and with this formula you can get any answer for the questions like this. Okay, moving on to the next question. Please note down these solved examples. It will be helpful to you. Okay, moving on. A solid object of mass 5 kg. Mass of this solid object is 5 kg. Floats in a liquid. Okay, so it floats. Calculate the buoyant force acting on the body. Okay, so we know that for any floating body, buoyant force is equal to weight of the body। क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में बुओयंट फोर्स होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट होता है बॉडी का। ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी तो बॉडी फ्लोट करेगा, राइट। सो व्हेन द बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी फ्लोट्स, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द बुओयंट फोर्स। सो बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, और वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट का फॉर्मूला है m इंटू जी, ठीक है, ठीक है। m है 5, g 9.8 ले लेता है। सो 9.8 इंटू 5 विल बी अप्रोक्सीमेटली 4.9 न्यूटन। द बुओयंट फोर्स विल बी इक्वल टू 4.9 न्यूटन। लेट्स चेक द आंसर। आई एम सॉरी, मेरी मिस्टेक है, 49 होगा, क्योंकि 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 5 49 है। सिली मिस्टेक, सी मैं भी सिली मिस्टेक कर देता हूँ कभी कभी। 49 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड बॉडी ऑफ मास 5 kg, mass is equal to 5 kg and density 5000 kg per meter cube। डेंसिटी, बॉडी का डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना है? 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, is immersed completely in a liquid of density 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड DL कितना है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Find the upthrust acting on it, acting on the body basically। FB upthrust, buoyant force हमें ढूंढना है।
देखो सबसे पहले बोएंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है? अपथ्रस्ट डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी पे। क्या हमें पता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी? नहीं। फिर वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, ये हमें पता है। और इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम 9.8 या 10 ले सकते हैं। ठीक है, सो वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। नाउ वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, देखो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। मास कितना है? 5 kg। डेंसिटी कितनी है? 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 5/5000 मतलब 1/1000 मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब होगा इसका वॉल्यूम। 10⁻³ बिकॉज 1000 इज 10⁻³ 1/10⁻³ इज 10⁻⁻3। ठीक है, वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम ऑफ बॉडी मिल गया। नाउ बोएंट फोर्स इज इक्वल टू volume of body multiplied by density of liquid multiplied by acceleration due to gravity. So volume of body is 10⁻⁻3, density of liquid is 10⁻³ 1000 मतलब 10⁻³ और acceleration due to gravity is 9.8। तो 10⁻³ और 10⁻³ हो जाएगा 10⁻0 इंटू 9.8। 10⁻0 है 1 इंटू 9.8 इज 9.8 न्यूटन। तो बोएंट फोर्स कितना होगा इस बॉडी पे? अपथ्रस्ट कितना होगा? 9.8 न्यूटन। इजी, 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड बॉडी ऑफ वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया है बॉडी का, कितना है? 60 सेंटीमीटर क्यूब। इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन वाटर, कैलकुलेट द बोएंट फोर्स। कुछ नहीं दिया है और कुछ भी नहीं दिया है, सॉलिड बॉडी दिया है और सीधा उसका बोएंट फोर्स पूछा है। वाटर दिया है, तो हमें पता है ना कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब तुम पूछोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं अभी तक, डेंसिटी ऑफ वाटर इतना होता है। ये मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद जो पार्ट है उसमें पूरा मैं डेंसिटी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडीज कितना होता है, ये सब मैं बात डिटेल में करूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अभी सिर्फ जस्ट टेक इट एज पर माय वर्ड कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेट द बोएंट फोर्स। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग 9.8 ले लेते हैं। सो बोएंट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड multiplied by density of water multiplied by g। तो दिस इज 60 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसको मीटर क्यूब में भी तो करना पड़ेगा। तो देखो सेंटीमीटर टू मीटर इज डिवाइड बाय 100, तो सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब क्या होगा? डिवाइड बाय 100 क्यूब। 100 क्यूब मतलब 10⁻² का क्यूब, इसका मतलब है 10⁻6 डिवाइड बाय 10⁻6। अगर डिवाइड बाय 10⁻6 करता हूँ मतलब यहाँ पे 60 को 10⁻6 से डिवाइड कर देता हूँ तो इट विल बिकम 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। 60 multiplied by 10⁻⁻6 meter cube। Let me write it in the same way. Divide by 10⁻⁻6 is nothing but multiplied by 10 raised. Divide by 10⁻6 is nothing but 10 divide by multiplied by 10⁻⁻6. I'm sorry. So 60 multiplied by 10⁻⁻6। मैंने क्या किया? सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1000 मतलब 10⁻3। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना ले लेंगे हम? 9.8। अच्छा, तुम्हें अगर चाहिए तो हम 10 भी ले सकते हैं, इजी हो जाएगा, तो आंसर थोड़ा आजू बाजू में भी आ जाएगा। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। अच्छा, तुम मुझे पूछोगे कि सर एग्जाम में क्या ले हम लोग, तो एग्जाम में मुझे लगता है कि 9.8 लेके थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करके दिखा दो। सो दिस विल बी 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ 10⁻³ इंटू 10, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 10⁻³
that is 6 into 10 raised to 2 into 10 raised to minus 3, that is 6 into 10 raised to minus 1, that is 0.6. 0.6 क्या हो जाएगा ये? न्यूटन। अप्रोक्सीमेटली 0.6 या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना, सॉरी कम होना चाहिए वो एंड फोर्स, 0.6 या उससे अराउंड होना चाहिए। लेट्स चेक। या सो ये लोग ने डाइन में कन्वर्ट कर दिया है पूरा। डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स, सो अराउंड हमारे हिसाब से 0.588 आना चाहिए अगर 9.8 लिया है तो, लेकिन अपना भी करेक्ट है 0.6 न्यूटन, विच इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच होगा। ठीक है। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, इन दैट पार्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डेंसिटी एंड मैं थोड़ा सा अलग से इसके ऊपर बात करूंगा, उसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं इंक्लूड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जांपल दिए नहीं, थोड़े दूसरे वाले एग्जांपल इंक्लूड करूंगा। ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।